It is a great privilege and honor to introduce our own member, CA Rakesh Kapoor. He is a principal partner in Messrs. Rakesh S. Kapoor and Company. He is a seasoned chartered accountant with over 30 years of experience in income tax, including 18 years of post-qualification practice. He stands as a trusted advisor to corporates, PSUs, NBFCs, fintechs, and cooperative societies. His journey began with formative exposure to search and seizure proceedings, assisting in family counsel. His early experience ignited a passion for financial justice and strategic advisory, culminating in his CA qualification in 2007, FCA status in 2012, and DISA certification is in 2014. As a founding partner of Messrs. Rakesh S. Kapoor and Company, he has built a practice known for precision, integrity, and strategic foresight. His firm serves as a diverse clientele, including entities with extensive cross-border transaction, requiring nuanced expertise in international taxation and transfer pricing, income tax and litigation support, audit and assurance, etc. CA Rakesh Kapoor believes that chartered accountancy is the most versatile profession in the financial world. A true all-rounder, his approach blends technical mastery with emotional intelligence, ensuring that clients receive advice that is not only compliant but also compassionate and strategic. Now, with this brief introduction, I request our past convener CA Vishal Joshi to present memento to the speaker. I also request our committee member Shreyansh Dedia to present CABF receipt fund to the speaker. Request sir to start the presentation. Good morning to everyone. हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं जानता हूँ कि संडे को अपने बैठे हुए हैं इस समय और बड़ा ही टफ काम होता है संडे को आकर के मतलब CPRs को अटेंड करना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा आपकी नींद खराब करने का मूड करते हैं सर, बिकॉज ये 15CB जो इशू है वो केस लो कहाँ पे है? ये एक 15CB के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आज अपना सेशन है। तो 15CB हम में से कितने लोग इशू करते हैं? एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार हाथ उठा सकते हैं क्या? हम में से कितने लोग 15CB उठाते साइन करते हैं? बराबर है। और ऐसा कितनी बार होता है कि मतलब क्लाइंट का फ़ोन आता है, सर कि कल वो पेमेंट करनी है, आप 15CB इशू कर दीजिए। ऐसा अपने साथ होता है कि नहीं होता है सर? एक बार हाँ बता सकते हैं आप। और हम नॉर्मली मतलब अपने क्लाइंट को ओब्लाइज भी करते हो, होता है सर कल पेमेंट करनी है, बैंक में आदमी जाएगा, आप 15CB साइन करके भेज दो। हम अपने आर्टिकल को बोलते भैया तो एक काम कर 15CB रेडी कर दे, मेरे से साइन करा ले, डिजिटल साइन ले ले। मैं तो करता हूँ ऐसा, कई बार करता था पहले, आजकल थोड़ा डर लगता है जब से ये केस देखा। तो आप में से शायद ऐसे कई लोग होंगे जो करते होंगे ऐसा साइन अर्जेंटली कि भाई 15CB की पेमेंट करनी है। तो एक बार ये केस लो देखते हैं, हम लोग प्रेजेंटेशन चालू करें, बिकॉज आप सबको 15CA-CB के बारे में जितना आइडिया है कलेक्टिवली उतना तो मेरे को भी नहीं होगा, बट ये केस लो आपकी जानकारी में लेके आते हैं सर। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने एक रवि कुमार बोल करके चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट किया। क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि उन्होंने 15CB इशू किया था और बिना पार्टी को वेरीफाई किए हुए, और पार्टी को पेमेंट क्या जा रही थी इंडिया से कि वो रेंट पे कर रहे थे क्लाउड का। हम सब जानते हैं कि क्लाउड स्टोरेज जो है उसके ऊपर अपने को TDS काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बिल देख लिया, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसको नॉर्मल देखने चाहिए, उसके बावजूद वो अगर साइन कर रहा है, तो प्रिवेंशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऐसी खतरनाक तलवार है जो हम सबको जगा करके रखना चाहिए कि अगर हम 15CB इशू करते हैं
तो हमको बहुत ही कॉशियस होके करना चाहिए। एक बार ये केस आप सब जरूर पढ़िए। ये जो केस है ना, रवि कुमार वाज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर पीएमएलए स्पेशल कोर्ट, लास्ट पैरा जो है। इसके पहले देखिए थर्ड पैरा पे आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन बाय ईडी हैज रिवील्ड that Ravi Kumar, without doing any due diligence and without verification of genuineness of import documents, had issued 621 bogus Form 15 CB certificates and blindly signed the balance sheets of shell companies, which enabled them to launder the proceeds of crime to Hong Kong SAR China. Despite being a CA, he failed his statutory duties and assisted the accused persons and charged rupees 1500 per bogus certificates and thus got involved in the office of money laundering for personal gain. 1500 रुपए के लिए एक सर्टिफिकेट साइन किया और इस टाइप से सर्टिफिकेट साइन करके आज वो उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन भी उन पर इनिशिएट किया है इंस्टीट्यूट ने। दैट में अभी उसका फाइनल आउटकम मेरे को मालूम नहीं है। तो आज के बाद इस पीएमएलए के केस को देखने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा तो कॉशियस हो जाना चाहिए कि हम डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा फोकस करेंगे। एंड नाउ वी गेट टू आवर प्रेजेंटेशन ऑफ द डे कि हमने क्या क्या आइटम देखने चाहिए विच विल हेल्प अस इन अवॉइडिंग दिस काइंड ऑफ अनवांटेड सिचुएशन। अब आता है क्वेश्चन कि 15 सीबी है क्या। 15 सीबी हम सब जानते हैं कि सर्टिफिकेट होता है, और सर्टिफिकेट के बारे में तो हम सब ये जानते हैं कि जब हम सर्टिफाई कर रहे हैं तो सर्टिफाई में कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सर्टिफिकेट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। व्हेन यू आर कंफर्म कि ये सर्टिफिकेट मेरे को ऑल द फैक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड, वी नीड ओनली देन टू इशू दैट सर्टिफिकेट। आई होप यू ऑल अग्री टू दैट सर। आज हम सब लोअर डायरेक्शन का सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑफिसर के पास जाते हैं, फॉर्म 13 का जाते हैं, हाँ या ना बता सकते हैं आप लोग प्लीज। आप एक बात बताओ, जब एक फॉर्म 13 हम लोअर डायरेक्शन का सर्टिफिकेट लेने ऑफिसर के पास जाते हैं तो कितना सीरियसली हम सारे डॉक्यूमेंट्स के सेट को क्रिएट करते हैं। 3 साल का ITR लेते हैं, किसको पेमेंट करनी है उसका पूरा इतिहास लेते हैं। उसके बाद जा करके जब ऑफिसर पूरा डॉक्यूमेंटेशन पोर्शन चेक कर लेता है कि जितने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट अगर वैलिडेट हैं, उसके बाद भी उसमें से हमको कुछ क्वेश्चन आर निकाल के भेजता है ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, तब जाके वो हमको फॉर्म 13 इशू करता है। करेक्ट सर। और हम 15 CB कैसे इशू कर देते हैं, पार्टी ने बिल भेज दिया, TRC देखना हो, 10F देखना हो, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। नॉर्मली क्या होता है कि अपने सबके ऑफिस में आर्टिकल ही प्रिपेयर करते हैं। अब इतना सीरियस काम हम कितना लाइटली लेते हैं। 1500 रुपए के चक्कर में हम जेल घूम करके आ जाते कि चलो फोकट में 5 दिन का खाना मिल जाएगा अपन को। अब अपन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं सर। देखिए फॉर्म 15 CA जब फॉरेन रेमिटेंस करना पड़ता है तो उसके 4 हिस्से होते हैं, ABCD। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफिकेट देने की जरूरत कब पड़ती है, जब हमको DTAA का बेनिफिट लेना हो। समरी तो ये है कि अगर DTAA का बेनिफिट लेना है तभी हमको 15 CB की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज 15 CA सफाइसेस। तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं सर। हम सब जानते हैं कि अगर 5 लाख से कम का रेमिटेंस किया जा रहा है साल भर में तो 15 CA की जरूरत नहीं होती है। AO का सर्टिफिकेट है तो आपको 15 CB नहीं चाहिए। अगर DTAA का बेनिफिट लेना है तभी हमको 15 CB की जरूरत पड़ती है। और कुछ 33 आइटम है जो हमारे रूल 37 BB में डिफाइंड किए हुए हैं। वो आइटम की अगर पेमेंट इंडिया से बाहर भेज रहा है पार्टी तो आपको 15 CB की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी हमारे बैंक वाले जो है कई बार इंसिस्ट करते हैं, मतलब आप NRO अकाउंट से NRE में भी पेमेंट कर रहे हैं तो भी बैंक इंसिस्ट करता है कि भैया आप 15 CB ले आओ, और हम कि चलो ठीक है हम इशू कर देते हैं। बट टेक्निकली वी शुड नॉट इशू 15 CB अनलेस DTAA का हम बेनिफिट ले रहे हो। अब आता है क्वेश्चन कि हम जब 15 CB फिलअप करने के लिए बैठते हैं तो 15 CB के लिए हमको क्या क्या डिटेल की ज़रूरत होनी चाहिए। ये सब इसमें लिखा हुआ है कि रेमिटर की डिटेल होनी चाहिए, जो भेज रहा है उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, और हमको ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे रिकॉर्ड में रखना चाहिए। पे के बारे में हमको पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि हम किसको पे कर रहे हैं। जैसे भी आपको मैंने केस लॉ दिखाया रवि कुमार वाला,
कि उसमें उन्होंने पे के बारे में पूरी डिटेल नहीं ली थी, तो कॉन्सिक्वेंस हुए उनके। रेमिटर का डेटा, अमाउंट, ये सब तो टेक्निकल है जो हम सब अपने ऑफिस में जानते हैं, तो इसके बारे में वी विल नॉट डिस्कस मच। वी विल डिस्कस कि हमारे को डॉक्यूमेंटेशन पे क्या फोकस करना चाहिए। आई होप यू अग्री टू दैट, बिकॉज आई थिंक कि आपको मैं ये बताऊं कि रेमिटर की डिटेल क्या लगती है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमने तो फोकस करना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन क्या हमको अपनी फाइल में रखना चाहिए, सो दैट इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी टुमारो वी आर प्रिपेयर टू फेस द म्यूजिक। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर चार्जेबिलिटी मेमो टेम्पलेट। थोड़ा सा फैंसी वर्ड रखा है हमने, चार्जेबिलिटी मेमो टेम्पलेट। हम लोग सब पढ़ते रहते हैं ऑडिट एविडेंस और ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये वर्ड हमने यूज़ किया चार्जेबिलिटी मेमो टेम्पलेट। इसमें हमारा अपना रिकॉर्ड क्रिएट करना है। जब भी हम 15 सीवी साइन करें तो हमको ये रिकॉर्ड अपने पास मिनिमम रखने ही चाहिए। रेमिटर का नाम, पेई का नाम, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, नेचर ऑफ पेमेंट, DTAA का कंप्लायंस। DTAA में आप जानते हो कि सबसे बड़ी परेशानी आती है, आर्टिकल 7 में ले, आर्टिकल 12 में ले, आर्टिकल 14 में ले, सेकेंडमेंट, ये सारे के सारे इश्यूज हम लोगों को फेस करने होते हैं। तो उसके ऊपर तो डिस्कशन अपना टेक्निकल इशू आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लीगल इशू पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नहीं तो एक एक आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन करने में इट विल टेक मिनिमम 1 डे फॉर ईच आर्टिकल। ये मॉक ऑडिट चेकलिस्ट है जो हमारे को जरूर अपनी फाइल में रखना चाहिए। जब हम एज अ बॉस अपने आर्टिकल को बोलते तू बना करके लेकर आ, तो उसको हम ये आइटम जरूर चेक करना चाहिए हमें, सो दैट वी अवॉइड एनी मिस प्रॉब्लम। एग्रीमेंट और इनवॉइसेस ऑब्टेन्ड, हमने एग्रीमेंट या इनवॉइस जिसके अगेंस्ट में पेमेंट जा रही है वो हमारी फाइल में जरूर होना चाहिए। नेचर ऑफ पेमेंट, क्या नेचर की पेमेंट है। हमेशा प्रॉब्लम आती है रॉन्ग क्लासिफिकेशन की पेमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है कल बोले कि यार ये रॉयल्टी थी, हम कह रहे हैं नहीं रॉयल्टी नहीं, ये FTS था, या उसमें भी नहीं था। ये हमेशा रॉन्ग क्लासिफिकेशन का इशू आता है। TRC एंड 10F, TRC के बारे में आप सब जानते हो। TRC के बारे में टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट अपने जानते हैं बराबर। जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो DTAA का अगर बेनिफिट लेना हो तो TRC और 10F ये एनफ है। अगर अपने DRC अपने बेनिफिट देना चाह रहे हैं DTAA का, तो क्या TRC और 10F इससे प्रूव हो जाता है? हाँ या ना बता सकते हैं सर? हाँ सर, P सर्टिफिकेट तो है, बट TRC और 10F खाली इससे काम हो जाता है सर अपना? नहीं, वैलिड TRC और वैलिड 10F होना चाहिए बराबर। ऑनलाइन फाइल किया हुआ 10F और TRC वैलिड होना चाहिए। हम लोगों के पास कई बार ऐसी प्रॉब्लम क्या आती है सर कि TRC एक्सपायर कर गया। TRC इज टू बी रिन्यूड एनुअली बाय द SSC, जो उनका रेसिपिएंट है उसको हर साल TRC रिन्यू कराना पड़ता है। कई बार TRC आता है कि पता चला हमारे पास पेमेंट करनी है 10 अप्रैल को और उसका TRC एक्सपायर कर गया 1 अप्रैल को। ऐसी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो ऐसी जब सिचुएशन हो तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होना होता है, अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और पेमेंट कर दिया तो फिर वो फ्यूचर में डिमांड खड़ी हो जाएगी, बिकॉज वैलिड TRC नहीं है। सर देखो, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट जो है वो रेसिपिएंट ऑफ मनी उसको लेकर के आने का है, करेक्ट है सर? हम तो पेयर हैं। ठीक है सर, ये तो उसको चिंता करने दें। हमारा काम हमारे सर्टिफिकेट की चिंता है। हमको सर्टिफिकेट इशू करना है 15 CV का, उसमें लिखा हुआ है कि भाई 10 मतलब TRC वैलिड होना चाहिए। in many countries the TRC has been issued on a backdated TRC, मतलब उसमें आपका वो TRC पीरियड मेंशन नहीं किया जाता। लाइक आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ UK, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिया जाएगा कि लाइक इफ द UK इज इशूइंग द TRC in the month of January 25, it will mention that 24 he was the residency holder, but 25 they will not mention anything. So practically, generally what many people follow, whenever the TRC is issued, the issue date, from issue date they consider 1 year as a validity. January 25 में issue किया हुआ TRC है, till January 26 we assume it is a valid TRC, because उसमें जो period mention किया रहता है
वो हमेशा पास्ट पीरियड मेंशन किया जाता है. टीआरसी फॉर्मेट इज नॉट, वी कैन नॉट कंट्रोल द फॉर्मेट एज इट इज बीन इशूड बाय थर्ड पार्टी. Each country have different format for issuing the TRC. Some country mention the proper date, some country doesn't mention the proper date. So for that, whenever the period is not mentioned, we ask them to provide 10F. तो TRC वैलिड है या नहीं, उसका हम एक ही देखते हैं कि डेट, इशू डेट से 1 साल तक हम लोग वैलिडिटी लेते हैं. आफ्टर दैट वी आस्क देम टू जनरेट प्रोवाइड अ न्यू TRC सर्टिफिकेट. They issue for the calendar year. So as soon as the December is been over, in the month of January we ask them to issue a new certificate. Borderline केस में जैसे मंथ ऑफ जैसे जनवरी है, जनवरी की ट्रांजेक्शन है, बिकॉज countries also take 15 to 20 days for issuing the certificate. So in that case, you can consider the application filed by that party and previous TRC and a declaration. In case they are not been able to take the TRC, they will bear the but see, in borderline cases, generally in borderline cases, we take a declaration along with the old TRC and a declaration stating that they have applied. Application copy we take. So in some cases we need to, this is a practical solution. Not a, I will not say legal solution, but practical solution. मैं बिल्कुल देखो 15 सीवी हम साइन कर रहे हैं, हमारा काम 15 सीवी सर्टिफाई करने का है. सर देखो क्या है कि बड़ा सिंपल सी कहानी है कि हम अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लेने दें. हम अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लेने दें. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हमारे को कोई जिम्मेदारी मिली है, हमारी जिम्मेदारी है कि 15 सीवी इशू करना है ऑन मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया. आज अगर मीट नहीं हो रहा क्राइटेरिया, हम क्यों ट्वीक करना चाहेंगे. सर एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड. ठीक है, मियरली एप्लीकेशन. देखो क्या होता है, अपन जब व्हेन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम जब ये चालू करते ना, चलो ये एडजस्ट कर देते हैं. सर क्वेश्चन है, सर देखो एक बात बताएं, एक बंदे की डेथ होती है एक दिन पहले तक जिंदा था, नेक्स्ट डे ही डाइज. तो अब एक दिन मर रहा है तो उसकी स्टोरी खत्म हो गई. तो टीआरसी कल तक वैलिड था, आज टीआरसी होगा कि नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है. और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाई शुड वी थिंक ऑफ ट्विकिंग द फैक्ट्स. अगर किसी बंदे को पेमेंट लेना है, इजंट इट इज ऑब्लिगेशन टू अपने टीआरसी को अपना अपडेट करके हमको भेजें. सर फिर मैं कह रहा हूँ, वाई वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव बिकम सो हैबिचुअल ऑफ अकोमोडेटिंग द क्लाइंट. क्लाइंट कभी हमको अकोमोडेट करता है क्या. आप एक बार बताओ, क्लाइंट को कल एक बिल भेज दो कि इस साल की ऑडिट हम आपको साल के आखिर में करेंगे, एक बार आपको 5 लाख रुपए एडवांस भेज दो. क्लाइंट कभी एडजस्ट मेरे हिसाब से तो नहीं करता है, बट हम एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो पेमेंट आज नहीं आएगी, 15 दिन बाद आएगी. तो वाई वी चार्टर्ड, अगर लॉ ने लिखा है कि आपको नहीं एक्सेप्टेबल है तो वी शुड से पॉसिबल नहीं है. क्यों मेरी साइन इतनी हल्की नहीं हो सकती. सर मेरी प्रेजेंटेशन में व्हाट आई मेंशन, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द बेस्ट ब्रेन इन इंडिया. वाई वी ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज. आंसर इज नो. अगर 10F नहीं है, टीआरसी नहीं है, आई विल नॉट साइन 15 सीवी, किसी और चार्टर्ड से करा लो. आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स, नहीं बॉस आई एम द बेस्ट, नहीं तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता. 1500-2000 रुपए के लिए मैं ट्वीट करूं. Yes, we should value our own self, sir. I believe in that, sir, and we all believe in that. Sir, अभी हम सब ने 31 तारीख को जो लास्ट महीने गया था, पोर्टल पे देख रहे थे. वो पोर्टल हमारा अलग अलग हिसाब से घूम रहा था. जब ITR फाइल करने की लास्ट डेट होती है तो हम उस समय अगर कोई फॉर्म अपलोड करना होता है, वी गो क्रेजी उस समय. मतलब अलग अलग टाइप की एरर आती, जिसका मतलब अगर आप एनालाइज करो तो शायद इन्फोसिस वाला भी नहीं बताएगा कि कौन सी एरर जनरेट हुई. और पोर्टल का ट्विटर पे आ जाता है पोस्ट कि पोर्टल इज वर्किंग वेरी प्रॉपरली, सो मैनी रिटर्न्स अपलोडेड. एक रिटर्न वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर आकर के अपलोड करके दिखा दे. उस समय वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछो कितना पेशेंस होता है उसके पास. मतलब सीरियसली बताऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा पेशेंस वाला कोई बंदा मैंने तो नहीं देखा. चाहे वो जीएसटी का नया प्लेटफॉर्म हो, मतलब गवर्नमेंट ने हमें टेस्टिंग बना रखा है कि जब भी कोई नया पोर्टल लेके आना हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए दे दो. जीएसटी का नया पोर्टल चार्टर्ड अकाउंटेंट,
इनकम टैक्स का नया पोर्टल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम बैठे रहते हैं एक रिटर्न फाइल करने के लिए, ओटीपी सही आ रहा, आप पंच कर रहे हो 4 बार, बोलता नॉट वैलिड, डिजिटल सिग्नेचर काम नहीं कर रही है। वो मतलब ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, अगर आप उसको कंपाइल करना चालू करो तो एक बुक बन जाए सर। तो उसमें से कुछ एक छोटे मोटे हमने टेक्निकल ग्लिचेस निकाले हैं। अभी आप सबसे बात होगी तो आप बताओगे कि आपने भी अलग अलग ग्लिचेस फेस की होंगी। सो वी शेयर आवर एक्सपीरियंस कि किसने क्या क्या टेक्निकल ग्लिच देखी है सर। अभी टेक्निकल ग्लिचेस एंड माइग्रेशन में आप देखो, जैसे पोर्टल एक्सेप्ट डिले हो जाता है रेमिट, अगर 15 CA/CB किसी कारण से पोर्टल में नहीं हम फाइल कर पाते हैं तो पेमेंट में डिले हो जाता है, और ये पार्टी हमसे नाराज भी होती है। यूडीआई नॉट लिंक, हमने यूडीआई को लिंक नहीं किया, अगर उस समय बाद में यूडीआई लिंक किए या किसी कारण से यूडीआई लिंक नहीं कर पाए, ये सारी प्रॉब्लम हम नॉर्मली फेस करते हैं कि हमने 15 CB फाइल कर दिया, यूडीन जनरेट किया, बट 15 CA में अपलोड नहीं कर पाए। इन सब का है कि ICAI का कंप्लायंस का रिस्क होता है, जनरेट एंड लिंक इमीडिएटली, DSC अपलोड फेल्योर। आज DSC का जैसे मैंने बताया कि साइट में कई बार होता है कि DSC आप कस्टमर केयर में फ़ोन करो उनको तो बताते हैं आप जावा को अपडेट करो, या आपका जा कर के पूरा का पूरा गूगल वो जो अपना हिस्ट्री को डिलीट करो। सारे ट्रायल एंड एरर जो हम बैठ के उस समय कर रहे होते हैं, पता चलता है कि अगले दिन जब शांत हो गए तो फिर एक ही बार में वही गलती से पूरा अपडेट हो जाता है। बल्क अपलोड की फैसिलिटी भी आजकल आ गई है, अपने जानती हैं। मैंने आज तक ये भी बल्क अपलोड नहीं किया है, बिकॉज फ्रैंकली अपलोडिंग का काम इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स। डाउनलोड टेम्पलेट करके, आप लोग में से कितने लोगों ने बल्क अपलोड किया? मैंने तो आज तक नहीं किया, तो उससे पूछना चाहूँगा, जैसा गाइड करो सर, कैसे कर दो बल्क अपलोड, इजीली हो जाता है? मैंने नहीं किया आज तक बल्क अपलोड, बिकॉज पहले मेरा बॉस मेरे से 15 CB अपलोड कराता था, फॉर्चुनेटली मैं बॉस हूँ तो आई टेक दैट प्रिविलेज। प्रॉब्लम उसमें तो नहीं आती कोई? जैसा गाइड करिए ना, क्या प्रॉब्लम फेस करते कभी कभार? नहीं, बल्क अपलोड में एक ही इशू आता है, अगर आप ज़्यादा एक साथ बल्क करते हो, जैसे 20,000 30,000 फॉर्म, तो उसमें से ना ऐसा होता है 0.1% फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग, ओके, विदाउट एनी रीजन। दे विल गिव रीजन XYZ, बट वो रीजन रहता ही नहीं है, एंड व्हेन यू ट्राई टू अपलोड दैट फाइल वंस अगेन इट विल गेट अपलोडेड। अच्छा, सिर्फ ये इशू आता है। Split- अप टू 1000 देयर इज नॉट एन इशू, बट इफ यू आर अपलोडिंग मोर देन 1000 फॉर्म्स, तब ये इश्यूज आते हैं कि कुछ फॉर्म्स जो है वो ऑटोमेटिकली दे विल रिजेक्ट इट ओके, विदाउट मेंशनिंग एनी रीजन। एंड वन मोर थिंग कि बल्क अपलोडिंग से जनरली इफ यू आर डूइंग एन ऑनलाइन अपलोड विदिन अ डे आप दोनों 15 CA और CB दोनों अपलोड करते, पहले CB देन CA, बट बल्क अपलोड वी नीड टू हैव ऑन नियरली 1 day। ऑफलाइन It will take 5 to 6 hours to upload and generate 15 CB, and then again 5 to 6 hours to upload and generate 15 CA. 5 to एक दिन 6 का we need to take 1 day. 5 to 6 hours। आप कुछ बोल रहे थे? अच्छा, अपने कंप्लायंस एंड फाइलिंग की बात कर रहे थे, तो अभी TDS की रेट कैलकुलेट करना सबसे कॉम्प्लेक्स इशू जो है 15 CB में, वो है TDS की रेट को कैलकुलेट करना सर। जो एक्चुअल में सबसे कॉम्प्लेक्स इशू है कि 15 CB में अगर कोई एरर हो जाती है तो वो हमको पता कब चलेगी? अगर 15 CB में कोई एरर हो जाती है अपनी, तो वो हमको पता कब चलेगी कि हमने राइट रेट लिया था, गलत रेट लिया था? वाई आई एम रेफरिंग टू दिस, बिकॉज इसका पता हमें कब चलता है? नॉर्मली जब टैक्स ऑडिट हो रही होती है उस समय टैक्स ऑडिटर बोलता है कि इस आइटम पे इतना टैक्स काटना चाहिए था, आपने शॉर्ट डिडक्शन किया, वहाँ से भी अगर बच जाते तो असेसमेंट के समय जब असेसिंग ऑफिसर होता है, असेसिंग ऑफिसर उस समय देखता है, बोलता है कि भाई आपको इतना टैक्स की रेट काटनी चाहिए थी, आपने ये टैक्स कम काटा है और हम 30% का खर्चा डिसअलाउ कर देंगे, और आपने जो 15 CB इशू किया था वो आपने रॉन्ग इशू किया था, तो उसमें वो अपने को 279 की पेनल्टी जो 1 लाख रुपए तक की है वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। फॉर्चुनेटली मोदी जी ने आज तक उसको फीस वर्ड यूज़ नहीं किया है, वहाँ पे आज भी पेनल्टी वर्ड है, तो उसमें 273 में हम एक्सप्लेनेशन देने को फ्री हैं कि ये एक जेन्युइन एरर थी, वी एक्सरसाइज ऑल आर ड्यू डाइलिजेंस, वी कंडक्टेड, वी मेंटेन्ड ऑल द रिकॉर्ड,
तो इट इज़ नॉट ए डेलिबरेट एरर, तो मिस्टेक इज नॉट पेनलाइज्ड ऑटोमेटिकली लाइक इन केस ऑफ फीस इट हैपन्स। आजकल सरकार ने नया नियम निकाल दिया ना, कुछ भी हो तो फीस वर्ड यूज़ कर लो, लिटिगेशन की जगह पेनल्टी होती है, तो दे हैव टू गिव अस अ शो कॉस्ट, वी गिव देम द रिप्लाई, देन कोर्ट डिसाइड्स, ऑफिसर डिसाइड्स कि भाई ये पेनल्टी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, जस्ट रीज़न है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने आजकल वर्ड यूज़ करना चालू कर दिया फीस, कुछ भी हो तो फीस लगा दो ऑटोमेटिकली फीस। तो फॉर्चुनेटली आज तक 271I जो है वो पेनल्टी ही है, फीस नहीं है कि ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए की हम पर पेनल्टी इम्पोज हो जाए। तो वी होप कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसको फीस में लेकर ना आ जाए, नहीं तो हम CS 1500 रुपये 2500 रुपये के लिए ना लाख रुपए की फीस भरने को तैयार हो जाएंगे। एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अपनी हुई थी मोहनदास बेले शेट्टी केस में। ये साहब भी जो थे ये भी सर्टिफिकेट साइन करते थे विदाउट ड्यू डाइलिजेंस, विदाउट वेरिफिकेशन। और इन केस ऑफ इंक्वायरी जब इनकम टैक्स में असेसमेंट आया मैटर, तो DGIT ने उनको 131 का DGIT ने उनको बुलाया, ऑफिसर ने बुलाया उनको, और 131 में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देखता हूँ, खाली मेरे को पर डॉक्यूमेंट 1500 रुपया मिलता है, मैं बोगस के अगेंस्ट में भी साइन करके दे देता हूँ, तो मेरे को कोई पेनल्टी, मतलब ही हैड साइन नियरली 99 सर्टिफिकेट्स। ऐसे 3-4 केसेस और हैं विच आई लाइक टू शेयर विथ यू। रिसेंटली एक केस अपना सबसे ज़्यादा आया था R वेद नारायणन। इनके केस में भी इन्होंने करीबन 80 सर्टिफिकेट इशू किए थे 15CB के विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब मैं जब बार बार डॉक्यूमेंटेशन वर्ड कहता हूँ तो डॉक्यूमेंट के, आप डॉक्यूमेंट में क्या एनालाइज करते हो कि क्या डॉक्यूमेंट हमको रखना चाहिए। वी ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी एक हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ें रखना चाहोगे एग्रीमेंट में एज अ सपोर्टिंग। सर एक एक हाथ उठा करके हम लोग बताएं तो इंटरेक्शन हो जाता, थोड़ा सा अच्छा लग जाता, हम लोग सीख जाते एक दूसरे से। 10F हो गया, इनवॉइस हो गया सर, इन्होंने बता दिया 10F TRC इनवॉइस। आप में से कोई और कुछ बताना चाहेगा कि और क्या देखना चाहिए डॉक्यूमेंट में सर अपने को? डिक्लेरेशन, नो P डिक्लेरेशन, परफेक्ट। और कुछ? अपने ऑडिटर बैठे सारी, मतलब एकदम हम लोग को आज निकलना है तो सोच के जाना कि हमको कोई भी PMLA में नहीं जाना है। हाँ सर, ओके, परफेक्ट है सर। बिल ऑफ शिपिंग से आप वैलिडेट कर रहे हैं, परफेक्ट। बस अभी तो 6-7 डॉक्यूमेंट ही हुए, 27 डॉक्यूमेंट कम से कम होने चाहिए हमारे पास, 27 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी तक KYC तक तो पहुंचे नहीं हम कि जिसको भेज दें उसका KYC क्या होना चाहिए हमारे पास। अभी जब रवि कुमार का जजमेंट आप पढ़ेंगे, रवि कुमार के जजमेंट में यही हुआ था। रवि कुमार का जो केस है जिसमें PMLA ने, ED ने पकड़ा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, उसमें क्या हुआ था फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पेमेंट इंडिया से चाइना गई थी, वहाँ पे डमी क्लाउड रेंट का बिल बना था। अब आप बताओ एज एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इनवॉइस चेक कर लोगे, सब कर लोगे, अब वो डमी क्लाउड का रेंट जा रहा है इंडिया से, अब वो आप कैसे चेक करोगे? बस हम पेमेंट जब भी करते हैं, हम 15C भी साइन करते हैं तो फिर पेमेंट आउट ऑफ इंडिया भेजने के लिए करते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे ही होती है। बिकॉज आज की तारीख में सबसे खतरनाक एक्ट अगर कोई है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए तो वो PMLA। हम सबको PMLA को जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज PMLA एक्चुअल में सबसे खतरनाक एक्ट है जिसमें ED गिरफ्तार करने का राइट रखती है हमको। इनकम टैक्स आपको नोटिस देगा, GST आपको नोटिस देगा। आप जब 15C भी साइन कर रहे हो सर, तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया। तो लॉन्ड्रिंग व्हाट हैपेंस? मनी इज टेकन आउट ऑफ इंडिया, यू आर अबेटिंग। सर
दैट इज द रिस्ट्रिक्टिंग पॉइंट यू आर सेइंग, बट उसके पहले कि वो जो ट्रांजेक्शन है वेदर दैट इज वैलिड और नॉट। हाँ सर, तो वही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है कि भाई आप केवाईसी ले लोगे, सामने वाले का पैन ले लोगे, सामने वाले का वहाँ का एंटिटी ले लोगे, अब वो डमी क्लाउड रेंट जा रहा है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाउ विल वी बी एबल टू वेरीफाई? बट अनफॉर्चुनेटली these things are happening, so we should try to become more vigilant while we are issuing any certificate. हमको इनकम टैक्स ऑफिसर से एक चीज़ सीखनी चाहिए कि जब लोअर डायरेक्शन का सर्टिफिकेट वो इशू करता है, हमको कम से कम 1 हफ्ते दौड़ाता है वो डिपार्टमेंट में, कम से कम 1 हफ्ता दौड़ाता है, कल आना, परसों आना, तरसों आना। बहुत अच्छा आपने बोला सर, बहुत अच्छा आपने बोला। सो तो दिस इज द बेसिक रीजन सर कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जब एक साथ इकट्ठा होते हैं ना तो जीनियस आंसर्स रिप्लाई आती है सर। जैसे भी आपने बताया कि अगर किसी ने कहा कि मेरे को क्लाउड होस्टिंग का बिल बन रहा है तो मेरे को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वैलिडेट करना चाहिए कि वेदर क्लाउड होस्टिंग उसकी है कि नहीं। वो बोलेगा आपका डेटा मैं आपको कैसे, हम उसको बोल सकते हैं कि तुम अपने ऑफिस में मेरे को डेटा डाउनलोड करके दिखा दो। these are the things which as a chartered accountant हम जब शेयर करते हैं तो we become rich in our knowledge। और किसी के पास सर इस टाइप का आइडिया? हाँ सर, नहीं नहीं, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं सर आप? सर सबसे पहले आपको बताऊं, सिविल केस में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। जो सिविल केस होता है उसमें देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि भाई ये टाइम बार्ड हो जाएगा, बट क्रिमिनल केस में देयर इज नो टाइम लिमिट। जो क्रिमिनल केस होते हैं ना उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, 10 साल 20 साल का कोई टाइम लिमिट उसमें। जैसे अपने इनकम टैक्स में अपने आते हैं 151 में आपको टाइम लिमिट डिफाइन की हुई है कि भाई 153 में इतनी टाइम लिमिट है, इतना आपको खत्म कर देने का है। क्रिमिनल केसेस में ऐसी कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। सर मैं डराने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब तक हम नहीं डरेंगे हम ज़्यादा कॉशियस नहीं होंगे। हमारा डरना जरूरी है क्योंकि किसी और के फायदे के लिए हम अपना नुकसान करते हैं। सर इतनी मेहनत से जब ये डिग्री लेते हैं, मैं कहता हूँ ना एक ITO है, हम जब उसका लोअर डायरेक्शन का सर्टिफिकेट लेने जाते हैं वो डॉक्यूमेंट कितने साल रिटेन होता है गवर्नमेंट का, आप जानते हो। हमारे को हम, हाँ सर, नहीं, जो डॉक्यूमेंटेशन हम सबमिट किए गवर्नमेंट को वो कम से कम गवर्नमेंट भी 8-8 10-10 साल रिटेन करती है सर। तो हमको भी अपने ऑफिस में वो जो डॉक्यूमेंट हमने जमा किया है कम से कम 8 साल, CA इंस्टीट्यूट तो रिकमेंड करता है कि कम से कम 8 साल आप संभाल के रखो। अब उनको नहीं मालूम कि बॉम्बे में बॉस 8 साल डॉक्यूमेंट जमा करते रहेंगे तो एक ऑफिस तो ऐसे ही चला जाएगा। बट सर क्या है ना, अब प्रॉब्लम है कि आप उसको डिजिटाइज भी करोगे तो कितना डिजिटाइज करोगे? डिजिटाइज करना भी पॉसिबल नहीं होता है। हाँ सर, सर वही कह रहा हूं सर कि मतलब वो यही कहना चाह रहा हूं सर कि देखो हम लोग के ऊपर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तो सुपरमैन इसीलिए माना जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुपरमैन फॉर दैट रीजन, जो दूसरों के लिए संभव है वो चार्टर्ड के लिए संभव है। बिकॉज इतना डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना, इतना वेरीफाई करना, मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा मेरे को नहीं लगता कोई कर सकता। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, उसका क्या प्रिस्क्रिप्शन रहती है, मुश्किल से उसके पास 2 दिन की प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। आजकल तो फिर भी रिकॉर्ड रखता है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, गवर्नमेंट कहती है हर डॉक्यूमेंट को सजा के रखो। हम साल भर में कम से कम 100-200 सर्टिफिकेट तो इशू करते हैं सारे। आप जस्ट इमेजिन करो कि हर साल आप 200 सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, एक डॉक्यूमेंट के साथ में 20 डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए, 27 डॉक्यूमेंट का 5400 डॉक्यूमेंट हो गए। 10 साल में 54,000 डॉक्यूमेंट, इतना डॉक्यूमेंट आप कहाँ रखोगे संभाल के? सबके ऑफिस में एक जगह रिस्ट्रिक्टेड है। मुंबई शहर है, छोटे शहर की बात अलग है सर। मुंबई में तो आप अपने ऑफिस में कुछ भी रख लो, लगता है कि यार ये जगह हमारी जबरदस्ती की वेस्ट हो रही है। तो
जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्ड कहना चाह रहा था मैं, कि डॉक्यूमेंट हमको कम से कम 8 साल तो रिटेन करने ही चाहिए। और जैसे सर ने बताया, जैसे हम सब ने मिलकर के डिस्कशन किया, इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, सामने वाले का टीआरसी होना चाहिए, फॉर्म 10F होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो पेमेंट किया, तो व्हाट वी शुड प्रेफर कि पेमेंट करने के बाद हम पार्टी को बोले जो पेमेंट किया उसकी भी डिटेल मेरे को भेजो, बिकॉज हम जब 15 CV इशू करते तो पेमेंट करने वाले हैं कितना रुपया वो डिटेल जाती है, बट पेमेंट किया उसकी डिटेल हमारे पास नहीं आती है। तो वो भी हमको अपने रिकॉर्ड में रख लेना चाहिए कि पार्टी ने इसको पेमेंट की है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई पार्टी ने पेमेंट उसको राइटली हमने जिस सर्टिफिकेट के हिसाब से किया तो वैसे कर दिया है सर। और हमारे जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं अभी फॉर्म 15 CV में कि भाई एरर हो गई, कई बार होता है कि गलत क्लॉज डाल दिया 15 CA में, या आज 15 CV इशू कर दिया, पार्टी बोली कि आज पेमेंट नहीं कर पा रहे, 3-4 दिन बाद पेमेंट करेंगे, 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे, 15 CA में कुछ एरर हो गई, तो 15 CA कैन बी विदड्रॉन विद इन 7 डेज, और नहीं किया तो फिर वो फ्रेश 15 CA फाइल करना होगा। यूरिन अगर हमने अपडेट नहीं किया टाइमली, तो यूरिन फिर हम अगर टाइम बार्ड हो गया CA गाइडलाइन के हिसाब से, हमको फ्रेश 15 CV बनाना पड़ेगा, एंड विल हैव टू रेफर कि पुराना 15 CV इशू किया था, अब वो हम नहीं कर पाए। These are the issues, और we have to be, again I'll say कि ये ऐसा टॉपिक है जो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट रोज हैंडल करता है 15 CA/CB का। तो जहाँ जरूरत ना हो वहाँ 15 CB इशू ना करें, एंड बी वेरी कॉशियस while issuing 15 CB, because when we sign we assume a lot of responsibility and liability on our shoulder। जूनियर्स को हमको ट्रेंड करना चाहिए, और जब भी कोई नया सर्टिफिकेट आए, देखिए क्या होता है कि एक ही सीरीज हम पेमेंट जब करते तो नॉर्मली 15 CB में एक टाइप की पेमेंट होती है, तो एक सर्टिफिकेट बना के अपनी टीम को गाइड कर दिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे सेट रेडी रखो, और कुछ भी वेरिएशन है तो फिर हमको उसको गाइड करना चाहिए आर्टिकल्स को, बिकॉज एज अ चार्टर्ड वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड आवर टाइम एवरी डे इन जनरेटिंग 15 CB। वी ऑल आउटसोर्स इट टू आवर स्टाफ। No, much more. सर देखो, जब आप पेमेंट कर रहे हो एज एन ऑडिटर, व्हेन वी आर सर्टिफाइंग, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर सर्टिफाइंग, वी आर सपोज टू नो ईच एंड एवरीथिंग। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि you are assumed to know every law and every law which is prevailing in the land, तो PMLA is a part of that। अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर सपोज टू नो एवरीथिंग कि मेरा क्लाइंट ये गलत कर रहा है। वी आर द फर्स्ट, वी आर द सिंपलेस्ट टारगेट, वी आर द सॉफ्ट टारगेट सर। क्यों वी आर द सॉफ्ट टारगेट? आप देखो GST में आता है तो तुरंत आकर के पकड़ करके ले जाते हैं कि आपने क्या किया था। तो दीज आर द, और ये जो आप कह रहे हो सर कि हम ओनली टैक्स रेट नहीं सर, आप जिसको पेमेंट कर रहे हो KYC उसका भी आपको देखना होगा। सर ड्यू डाइलिजेंस किसको कहते हैं? अगर मियरली डॉक्यूमेंट के ऊपर ही जाना है, जैसे सर ने बताया कि अगर कोई ने बोला कि अपने को उसका सर्वर पे जाके पेमेंट का देख लेना चाहिए, तो हमको वैसा थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, सो दैट वी अवॉइड। बहुत सही है। बट सर मैं आपको बोलूं, आप MRL ले भी लो। MRL देखिए, जहाँ पे ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो डॉक्यूमेंट भी क्रिएट हो जाते हैं, जैसे सर ने कहा कि वी आर द सॉफ्ट टारगेट। अब वहाँ पर सर मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन जो लेटर है ना, दैट डज नॉट अब्सॉल्व अस फ्रॉम एनीथिंग, इट हेल्प्स अस इन लिटिगेशन। ड्यू डाइलिजेंस इट इज वन ऑफ आवर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सर, बट फ्रेंकली जैसे भी आपने पहले कहा कि भाई इसीलिए सर जब हम अपना क्लाइंट चुनते हैं तो क्लाइंट को बड़ा हिसाब से चुनना जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊं,
कल ही मेरे पास एक केस आया कि भैया वो ऑडिट रिपोर्ट बना दो, 23 करोड़ रुपए का सेल है, 22 करोड़ रुपए की परचेज है, बैंक में कुछ भी नहीं है, सारा कैश ट्रांजेक्शन है। मैंने कहा भैया नहीं, मेरे बस में नहीं है। क्यों? अब 22 करोड़ 23 करोड़ मेरे को फीस तुम लाख रुपए 2 लाख दे भी दोगे तो कल मनी लॉन्ड्रिंग का चक्कर ही है। तो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बड़ा ड्यू डाइलिजेंस एक्सरसाइज करना चाहिए बिफोर वी सेलेक्ट एनी क्लाइंट, एंड स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। हमें प्लीज सर, कौन सा सर? क्रेडिट कार्ड पे ऑटो डेबिट हो रहा है तो सर क्रेडिट कार्ड कितने की पेमेंट कर रहे हैं आप? पहली बात तो कि सर जो आपका बैंकर है, जहाँ तक मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, आप अगर 7 लाख रुपए इट इज फॉर विच पर्पज? आरबीआई का प्रायर परमिशन वाली पेमेंट है कि आरबीआई का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए? इन ओके, ठीक है। इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट जनरली व्हाट वी डू कि जैसे ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो है ना वो रिकरिंग पेमेंट रहता है, so in advance we are issuing a certificate before they are making the payment. See, the remittance date is mentioned is a tentative date. Bank detail has to be mentioned of us, who is the remitter. कौन से बैंक से पेमेंट जा रहा है वो बैंक डिटेल रहता है, किस बैंक में पेमेंट जा रहा है वो नहीं डिटेल मेंशन करते हैं, और जो पेमेंट डेट जो आता है वो टेंटेटिव रहता है। एग्जैक्टली सेम डेट पे पेमेंट होना नॉट नेसेसरी, उसके एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, हाँ उससे पहले नहीं हो सकता। प्रपोज डेट रहता है, वो टेंटेटिव डेट रहता है। तो इन जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं, आज आपने 15 CACB इशू किया जिसमें प्रपोज डेट कल का डाला है, तो 1 महीने तक आप वो 15 उसके बेसिस के ऊपर बैंक वाले भी एक्सेप्ट करते हैं। यस, आपका बैंक अकाउंट से जो डेबिट हो रहा है क्रेडिट कार्ड हिट करने वाला है, आप वो डाल सकते हो। सी इट्स ना ये 15 CACB जनरली क्या होता है, अपन क्या समझते हैं बैंक का रिक्वायरमेंट है इसलिए हम लोग इशू करते हैं, बट इज नॉट लाइक दैट। ये हमारा रिक्वायरमेंट है, इट्स द ड्यूटी ऑफ द रेमिटर। उसको पेमेंट, कोई भी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, अब चाहे वो नॉन रेसिडेंट के एनआरओ अकाउंट में भी पेमेंट कर रहा है जहाँ पर बैंक 15 CACB के इंसिस्ट नहीं करता, बट देन ऑल्सो we should issue the 15 CACB because the person is non-resident. Same way in case of credit card also. Before making of the payment, you should issue the 15 CACB mentioning what account you are going to hit and the proposed rate. Yes, 12 certificate. This is a solution that we should provide. Many people are thinking कि credit card payment हम issue नहीं कर पाते because we are not making the payment. और सेकंड ऑप्शन रहता है हम एनआरओ में पेमेंट कर रहे हैं तो हम 15 CACB इशू करें या ना करें, बट एक्ट जो है वो क्लियरली बोलता है आप पेमेंट नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, चाहे उसके एनआरओ में जाए चाहे उसके कोई अकाउंट में जाए। इफ ही इज अ नॉन रेसिडेंट वी शुड इशू अ 15 CACB। टीडीएस का बादशाह है रवि भाई हमारा, तो सही आदमी के सामने इतना सही सवाल किया। ठीक है, तो आई थिंक कि ब्रीफ प्रेजेंटेशन आई लाइक टू एंड। किसी को कुछ क्वेश्चन है? I'll answer that question, sir. I'll answer that question. बैंक जो है, बैंक का काम बैंक करेगा, मेरा काम मेरे को करना है। अगर कोई गलती हुई तो बैंक विल बी पनिश्ड, बट दैट डज नॉट ऑब्जॉल्व कि मैं पनिश नहीं होऊंगा। मेरा फॉल्ट रहेगा, आई विल बी फेसिंग द म्यूजिक फॉर माई फॉल्ट। लेट बैंक सफर, उससे मेरा बैंक की गलती थी इसलिए पेमेंट गई, सो आई शुड नॉट बी पनिश। दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज। देखो वो दे शुड बट क्या है कि वो तो आप पे छोड़ दिया ना पेमेंट करने के लिए। दे आर ओनली द पर्सन टू मेक द पेमेंट। Bankers are what? Bankers are only making the payment on the strength of your certificate. In case of bank also, like whenever we issue 15 CACB and
whenever bank is making the payment on behalf of on relying our 15 CACB, they have to submit form 15 CC on a quarterly basis. In a form 15 CC, they will mention that they have made 100 payment, and they will mention that the list of all 15 CACB for which they have made the payment. So banker's responsibility is to check whether the 15 whatever the payment has been gone out of India, against that 15 CACB number is there or not. If they are not been able to submit 15 CC, then RBI or Income Tax Department will make charge a penalty to them, because 15 CC has to be filed every quarterly by every bank on income tax portal. So bankers' responsibility is also there. See, bankers is not required to make due diligence. Bankers will always say, okay, we have relied this 15 CACB, and on the basis of this certificate, we have made the payment. Like in our CA also, if we rely on other CA certificate, we can rely. So on the basis of same way, the banker is relying on our certificate. Yes, this certificate is proper, on the this transaction is proper, since this CA has issued this certificate. No. I will give you an example. No. अगर आप जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप आरटीजीएस करते हो. इफ इन द आरटीजीएस यू मेंशन अ रॉन्ग नेम, अकाउंट नंबर प्रॉपर गया हुआ है, पर आपने आरटीजीएस के अंदर आर की जगह जे की जगह मतलब किसी और के पर्सन को दे दिया, तो किसी और को चला गया, तो उसमें बैंकर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, अकाउंट शायद नेम सेम है, अकाउंट नंबर किसी और का डाल दिया आपने, तो वो किसी और का चला गया. सो वी कैनॉट आर्ग्यू टू बैंक कि आपने ये ट्रांजैक्शन क्यों प्रोसेस किया. No. Bankers responsibility just to process the transaction. That's all. Okay, basis on the 15 CACB, they will process the transaction. Whether the transaction is valid or not, that is not a responsibility of the banks. That they are relying on the 15 CACB certificate. सर देखिए, मैं फिर से कहूँगा, हो सकता है बैंकर को भी पनिश कर दिया जाए, बैंकर गलत है, बैंकर में भी शॉट डाउन, बट इट विल नॉट अब्सॉल्व अस. It will not absolve us, sir. We will continue to be liable for our action. ठीक है. So रही भाई, See, 15 CACB आप बैंक के लिए इशू नहीं करते. या मैनी टाइम वी इशू द सर्टिफिकेट बिकॉज बैंक इज इंसिस्टिंग, बट 15 CACB आप हमेशा बैंक के लिए इशू नहीं करते. 15 CACB इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब जो रेमिट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, तो चाहे वो नॉन रेसिडेंट का एनआरओ अकाउंट हो, मैंने टाइम ये भी देखा कि उसका रेसिडेंट अकाउंट भी है, बट इफ द पर्सन इज नॉन रेसिडेंट, रूल क्लियरली बोलता है आपको 15 CACB इशू करना है. अब वो बैंक चाहे उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, बैंक ले या ना ले, बैंकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बैंकर तो सिर्फ ये देखता है अगर वो एनआरई ट्रांजैक्शन में पेमेंट जा रहा है तो उसको 15 CB के लिए मांगता है. नो रूल के हिसाब से इट इज नॉट अ वैलिड ट्रांजैक्शन. रूल स्पेसिफिकली से कि इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू अ नॉन रेसिडेंट, वहां पर वो वर्डिंग किधर भी नहीं किया हुआ है कि एनआरओ अकाउंट. द रूल जो है, रूल 37B जो भी है, वो क्लियरली बोलता है इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू अ नॉन रेसिडेंट. सेक्शन 195 में जब जाते हैं तो सेक्शन 195 की शुरुआत कैसे होती है? एनी सम पेएबल टू अ नॉन रेसिडेंट, एनी सम पेएबल टू अ नॉन रेसिडेंट अट्रैक्ट्स 195. रेंट पेमेंट बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की है, एंड वी आर अ इंडिविजुअल, हम अपने लेवल पर लेते हैं, बट वी आर मेकिंग अ पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, तो सेक्शन 195 अट्रैक्ट हो जाता है.
दो वी आर रेसिडेंट, हमारे लिए कोई ऑडिट केस एप्लीकेबल नहीं है, पर टीडीएस अंडर सेक्शन 195 एप्लीकेबल रहेगा और आपको एनआरओ का हिसाब से 15 सीएसीबी लगेगा। उसमें नहीं है 195 के लिए कोई ये exemption कंडीशन नहीं है कि आपको ना ऑडिट वाले पार्टी है या नहीं है, वो सिर्फ 194 आई के अंदर है, बट 195 के लिए नहीं है, थ्रेशोल्ड भी नहीं है। इवन इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 10 रुपीज ऑल्सो एज अ रेंट, तो आपको उसके ऊपर पहले 30 पैसा 3 रुपीज टीडीएस डिडक्ट करना है, 15 सीएसीबी इशू करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो भाई आई टेक योर परमिशन, थैंक्स अ लॉट फॉर यू ऑल। Thank you, Rakesh ji. Thank you very much for sparing your time on Sunday morning and enriching the knowledge of the members regarding the practical issues and future litigation may arise because of issuing 15 CACB without due diligence. Thank you, sir, for sparing your time. I request Shreyans Dedia to please give hearty vote of thanks to the sir. So we are privileged to have CA Rakesh Kapoor with us to share the inputs on documentation of 15 CACB and the nitty-gritties of 15 CACB. He explained us the consequences and the seriousness of any non-compliance while issuing 15 CACB. It will help all the members to be more vigilant and to implement the best practice for documentation and issuance of 15 CACB. Request all the members to extend a huge round of applause for our today's Senate speaker. Now we will have break for 5 minutes to change the dais. Request members to not leave this hall. We'll be back in 5 minutes.